الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا صدق اللہ العلی العظیم بلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے جہان کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت حضور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ جی لگا کر ہدیہ و سلام پیش کریں اور پورا مجمع آوازیں بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدنی مدب الکرم منبعی علم و رحمت و بارک وسلم صلی علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی علیہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ دائما ابدا ابدا. پیکر خلیص الوفا شاعر ہندوستان حضرت شمیم رضا فیضی صاحب اللہ کا حکم ہوا فقیر آپ حضرات کی تحریس تک حاضر آیا. ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں نقیب ہندوستان استاد الشعراء الحاج حسن رضا صاحب اللہ بوقاری تشریف فرما ہے. اور یہ دیکھیے شاعر ہندوستان حضرت ندیم رضا فیضی صاحب یہ تو صبح میں آنے والے تھے ابھی کیسے دیکھیے صبح میں آنے والا اگر 11 بجے آ جائے تو ہو سکتا ہے ہمارے لیے کوئی خطرے کی گھنٹی بھی ہم آنے والے کو روک نہیں سکتے ہیں. ندیم رضا فیضی تشریف لے آئے. ہم اپنی طرف سے کمیٹی کی طرف سے آپ سب کی طرف سے ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ یہ ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج پیروں کے پیر میروں کے میر روشن ضمیر پیران پیر دستگیر کی یاد میں ہم اور آپ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر اقبال نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اور میں آپ حضرات تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. بادشاہوں کو آپ نے فقیر بنتے دیکھا ہوگا مگر فقیروں کو آپ نے بادشاہ بنتے نہیں دیکھا. آج تک تاریخ شاہد ہے ابراہیم ابن ادہم نے بادشاہت چھوڑی فقیری اختیار کر لیا. حضرت مخدوم سینا نے بادشاہت چھوڑی فقیری اختیار کر لیا. مگر ایک فقیر پوری دنیا میں لائی ہے جس نے مصلہ چھوڑا ہو اور بادشاہت کی کرسی اختیار کر لیا ہو. اس لیے کہ فقیری کا مزہ ہی کچھ اور ہے فقیری کا رنگ ہی کچھ اور ہے. بریلی کے رضا کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر بطر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں رہی. حضرات الحمدللہ آج ہم اس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں جس بارگاہ میں صرف بادشاہ نہیں جاتا بادشاہ بھی جاتا ہے وزیر بھی جاتا ہے. بارگاہ ایک ہے ولی بھی اس بارگاہ میں ہے عالم بھی اس بارگاہ میں ہے محدث بھی اس بارگاہ میں ہے مفسر بھی اس بارگاہ میں ہے مجدد بھی اس بارگاہ میں ہے بادشاہ وقت بھی اس بارگاہ میں ہے فقیران زمانہ بھی اس بارگاہ میں ہے. میاں بارگاہ ایک ہے مگر دنیا کا ہر انسان اس بارگاہ میں حاضر ہے. نمازی اپنے مقصد کو لے کر اللہ والے اپنے مقصد کو لے کر غوث و خواجہ قطب ابدال اپنے مقصد کو لے کر. لیکن میں پوچھنا چاہوں گا ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا سائنس پڑھنے والا محدث کی بارگاہ میں جائے علم حدیث پڑھنے والا میتھمیٹکس پڑھانے والے کے پاس جائے علم تفسیر پڑھنے والا اردو پڑھانے والے کے پاس چلا جائے نہیں بلکہ جس کے پاس جو علم ہے انسان اس سے حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے. مگر بارگاہ غوث وہ بارگاہ ہے جہاں پہ غوث بھی پہنچ رہے ہیں
ख्वाजा भी पहुंच रहे हैं। बारगाह एक है मगर सबके मकासद अलग अलग है। मुफस्सिर इल्मे तफसीर के लिए जा रहा है, मुहद्दिस इल्मे हदीस के लिए जा रहा है, वली अपनी वलायत को चमकाने के लिए जा रहा है, गौस व ख्वाजा कुतुब अब्दाल अपनी मकबूलियत को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, नमाजी अपनी नमाजों की मकबूलियत के लिए जा रहा है। मगर उसी बारगाह में एक माँ औलाद की तलब के लिए भी पहुंच रही है। एक बेटा अपने बाप की बख्शिशों मग़फ़िरत की दुआएं कराने के लिए पहुंच रहा है। जहां नमाजी पहुंच रहे हैं, जहां हाजी पहुंच रहे हैं, वहीं शराबी भी पहुंच रहा है। मगर बारगाहे गौसियत से भगाया नहीं जाता, शराबी को नमाजी बना दिया जाता है। मियां जाने वाला चोर भी हाजिर होता है। मैंने कहा चोर तेरा इस बारगाह में क्या काम है? ये वलायत, ये दर वो दर है जहां से वलायत बढ़ती है। कहा सुना हो कि बड़े बड़े लोग इस बारगाह से मांग करके ले जाते हैं। ये वो बारगाह है जहां पे आज तक खजाने में कमी नहीं आई। मैंने सोचा बड़े छोटे छोटे लोगों के यहाँ से मैंने चोरियां की है, चलो आज उस बारगाह में पहुंचते हैं जहां से लेने के बाद भी कमी नहीं होती। उसे पता नहीं था सोनार मिनरल वाटर नहीं बेचता है, याद रखिएगा। उसे पता नहीं है कि जौहरी लोहा और पत्थर और तांबा नहीं बेचता है। ये गौस का दरबार है, यहाँ चोरों को वापस किया जाता है तो चोर बनाकर नहीं बल्कि आने वाला चोर बनकर आता है। वलायत का बादशाह उसे वलियों का वली और कुतुब बना करके वापस करता है। ज़माने को गौसे आज़म के दर से ये फैज़ दिया जा रहा है। तभी तो बरेली के रज़ा पुकार उठे, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आप खुशनसीब हैं, आज आप इस बारगाह में पहुंचे हैं। मैं पहले एक दो बातें इस फजीलत के हवाले से बता दूं ताकि आपका ज़हन साफ हो जाए। खुशनसीब है आप कि गौसे आज़म की महफिल सजा रहे हैं। खुशनसीब है आप कि बारगाहे गौसियत में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर है। वो गौस इशारा कर दे तो एक शराबी की जिंदगी बदल जाए। वो गौस दुआ मांग दे कब्रिस्तान में मुर्दे की बख्शिश व मग़फ़िरत हो जाए। एक बेटा ख्वाब में अपने वालिद को देखता है, बाप का इंतकाल हो चुका है, बाप परेशानी के आलम में मुब्तला है। बेटा पूछता है अब्बा हुजूर आपकी ये हालत कैसे हो गई? कहा बेटा मैं अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हो चुका हूँ। कहा अब्बा हुजूर फिर मैं क्या करूँ? कहा बेटा करना कुछ नहीं है, कल बारगाहे गौसियत में हाजिर हो जाना, कल गौसे आज़म की महफिल में हाजिर होना और जाकर कहना हुजूर मेरी बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ कर दे। नौजवान फजर की नमाज पढ़ता है और बारगाहे गौसियत में हाजिर होता है। ही खानकाह में हाजिर हुआ अर्ज़गुज़ार होता है हुजूर मैंने रात को अपने वालिद गिरामी को ख्वाब में देखा, मेरे वालिद परेशान थे और अज़ाब इलाही में मुब्तला थे। हुजूर उन्होंने कहा है कि जाकर हज़रत सरकार अपने दस्तगीर से कहना मेरी बख्शिश व मग़फ़िरत के लिए दुआ करे। अल्लाहु अकबर। सरकार अपने दस्तगीर उससे पूछते हैं बता क्या तेरा बाप कभी मेरी मजलिस में हाजिर होता था? क्या कहा? क्या तेरा बाप कभी मेरी मजलिस में हाजिर होता था? कहा हाँ हुजूर मेरे वालिद हाजिर होते थे। कहा अगर हाजिर होते थे तो फिक्र मत कर। सरकार अपने पीर दस्तगीर में निगाहें बंद की और जब निगाहें बंद की तो चेहरे पे जलाल था, निगाहें खोली तो लबों पे मुस्कुराहट थी। कहा ए शहजादे जा तेरा काम हो गया। शहजादा वहां से वापिस आता है, नींद आ जाती है, अपने वालिद गिरामी को देखता है, जन्नत की ठंडी हवाएं हैं, जन्नत की लिबास है, इत्मीनान सुकून से मुस्कुरा रहे हैं। कहा वालिद गिरामी अब क्या हाल है? कहा बेटा जो ही सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने मेरे लिए दुआ की और मेरी बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ के लिए हाथ उठा दी बारगाहे गौसियत से जब आवाज आई है रब्बे कदीर फरमाता है फरिश्तों ये बंदा नेक नहीं है मगर मेरा अब्दुल कादिर तो नेक है। अब्दुल कादिर की दुआओं की वजह से इसकी बख्शिश व मग़फ़िरत है। अल्लाहु अकबर। बाप कहता है बेटा हर दर को छोड़ देना मगर बारगाहे गौसियत को न छोड़ना। आप इतने खुशनसीब हैं वो नौजवान जो सिर्फ हाजिर नहीं हुए, आज उन्होंने गौसे आज़म की महफिल को सजा दिया है। कितने खुशनसीब हैं आप कि आज आप गौसे आज़म की महफिल में हाजिर है। याद रखिएगा जब बारगाहे गौसियत में हम हाजिर आ गए
गए जो पीरों के पीर मीरों के मीर कहते हैं मुरीदी ला तखफ मेरा चाहने वाला खौफ न करना पूरी दुनिया में जहां से तू पुकारेगा मैं वहीं तेरी मदद को पहुंच जाऊंगा चाहे आप हिंदुस्तान से पुकारे चाहे आप कब्रिस्तान से पुकारे इसलिए बड़े खुशनसीब है वो लोग जो गौसे आजम की महफिल सजाते हैं गौसे आजम की महफिल में सुनने के लिए आते हैं इसलिए मैं सबसे पहले ममनून और मशकूर हूं उन शहजादों का और बच्चे बूढ़े जवान का जिन्होंने आज के इस जलसे को सजाया है मगर हाँ मेरी कौम के लोगों ये हकीकत है हमने बुजुर्गों के जलसे को याद रखा है बुजुर्गों के किरदार को भुला दिया है हमने मज़ारों पे चादरों को याद रखा है और बेटियों के सरों से चादरें उतर नहीं है हमें इसकी कोई फिक्र नहीं है इस दौर में ये हकीकत है कि आज मज़ारों पे चादरें पड़ी हैं और बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है इस दौर की ये हकीकत है क्या मैं पूछना चाहता हूँ क्या सिर्फ लंगर खाने का नाम बुजुर्गों की याद है क्या मज़ारों पे चादरें चढ़ाने का नाम बुजुर्गों की याद है क्या सिर्फ नारा लगाने का नाम बुजुर्गों की याद है मौलाना हसन रजा अतहर कहेंगे सुल्तान रजा अल्लाह वाले चादरों के मोहताज नहीं हम उनकी दुआओं के मोहताज हैं अल्लाह वाले लंगर अल्लाह वाले साहब हमारी तो अल्लाह वाले हमारी चादरों के मोहताज नहीं बल्कि हम अल्लाह वालों की दुआओं के मोहताज हैं ऐ मेरी कौम के शहजादों याद रखना सिर्फ चादरें चढ़ा देना यह हमारे मसले का हल नहीं है आला हजरत ने लिखा मज़ार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है पूछा गया हुजूर बाकी चादरों का क्या किया जाए क्योंकि आज मज़ार एक है चादरें 1 लाख चल रही है आला हजरत फरमाते हैं बाकी चादरों को बेच दिया जाए और उन पैसों को उस अल्लाह वाले के नाम पर गरीबों में तकसीम कर दिया जाए सुल्तान रज़ा आपसे कहना चाहेगा आज हमारे यहाँ नारा लगाया जाता है मसलके आला हजरत अरे हाथ उठाकर बोलिए मसलके आला हजरत मसलके आला हजरत जिंदाबाद मगर आपने मसलके आला हजरत को सही से जाना नहीं है शायद आपने यही समझा जब शायरी अच्छी हो तो मसलके आला हजरत जिंदाबाद जब अशआर अच्छे पढ़े जाए मसलके आला हजरत जिंदाबाद नहीं आला हजरत का मसलक तो ये है कि मज़ार पे एक चादर चढ़ाई जाए और बाकी पैसों को उस वली के नाम पे गरीबों में तकसीम कर दिया जाए गरीबों में खर्च कर दिया जाए आज मैं अपनी कौम की शहजादियों से कहना चाहूंगा आज बड़ा अफसोस होता है हमें आज हमारी कौम की बहू बेटियों के सरों से चादरें उतर रही है आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा आज किसकी बेटी होगी जिसके पास 5-10 दुपट्टे नहीं होंगे 5 अमीर शहजादियों का हाल ये है 100 दुपट्टे आपके घरों में है मगर एक शरई दुपट्टा ला करके दिखा दीजिए जिस जो दुपट्टा शरीयत के एतबार से ओढ़ना उसके लिए जायज हो आपने देखा होगा आज हमारे यहाँ जब चादरें चढ़ानी हो तो लोग पूछते हैं सदरे जलसा से मौलाना साहब किबला जरा देखिएगा ये चादर अच्छी है कि नहीं है चादर मोटी है कि नहीं है चादर मखमली है कि नहीं है मैं पूछना चाहूंगा आप में कितने लोग होंगे जिन्होंने सैकड़ों मज़ारों पे चादरें चढ़ाई होंगी मगर बुरा न मानिएगा अजमेर शरीफ में चादर आप चढ़ाते हैं बरेली शरीफ में चादर आप चढ़ाते हैं देवा शरीफ में चादर आप चढ़ाते हैं कानपुर शरीफ में चादर आप चढ़ाते हैं गौसे बरगाना की दुर्गम पे चादर आप चढ़ाते हैं ये याद रखना मगर याद रखना रईसुल कलम के मज़ार पे चादर नहीं चढ़ाइएगा आप गुनहगार नहीं होइएगा ताजुश शरीयत के मज़ार पे आप चादर नहीं चढ़ाइएगा आप गुनहगार नहीं होइएगा गौसे आज़म की दुर्गम पे आप चादर नहीं चढ़ाइएगा गुनहगार नहीं होइएगा मगर आपकी बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं हो आप गुनहगार हो जाइएगा आपकी बीवी के सर पे चादर नहीं हो आप गुनहगार हो जाइएगा आपकी मां के सरों पे चादर नहीं हो आप गुनहगार हो जाइएगा इसलिए कि मज़ारों पे चादर चढ़ाना फर्ज नहीं ये मुस्तहब है मगर बेटियों के सरों पे चादर चढ़ाना फर्ज है मां के सरों पे चादर चढ़ाना फर्ज है बहू बेटियों के सरों पे चादर चढ़ाना फर्ज है इसलिए आज गौसुल बना के इस जलसे से पैगाम ये लेकर के जाओ कि आज के बाद हम मज़ारों पे चादरें चढ़ाएंगे अपने घर की औरतों के सरों पे चादरें पहले चढ़ाएंगे अपने मोहल्ले की नारे तकबीर
मियां मैं आपसे कहना चाहूंगा कभी पता लगा लीजिए, पता लगा लीजिए, कोई जरूरी नहीं है। मैं कहूंगा 50 रुपए की फूलों की चादर मजार पर चढ़ा दीजिए, 450 बचा कर ले आइए, घर में अपनी बीवी से पूछिए, मोहल्ले में पता लगाओ किसी की बेटी का दुपट्टा फटा हुआ तो नहीं है, किसी औरत के पास ऐसी तो नहीं है कि चादर नहीं हो। एक काम करो, ये पैसा लो और बेहतरीन चादर लाकर उस बेटी को दे देना, ताकि वो अपना सर छिपा रहे और बारगाहे खुदाबंदी में उसे ओढ़ कर सजदा भी अदा करती है, सजदा भी अदा करती है। माशाअल्लाह, क्या बात है। ये देख रहे हैं उड़ीसा के शायर, झारखंड के शायर शहनाज हसन साहब, ये भी तशरीफ ले आए। इतने बड़े शायरों के बीच में मेरी तकरीर हो सकती है? अरे बोलिए ना, हो सकती है? तकरीर करूं, सुनेंगे आप लोग ना? जरा हाथ उठाकर एक बार बोल दें या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तशरीफ ले आए, मैं इन सबका ममनून व मशकूर हूँ कि इन लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। मैं अर्ज कर रहा था, ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, याद रखना, अगर मज़ारों पे 1 लाख चादरें चढ़ जाए मगर हमारे मोहल्ले में किसी गरीब बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं हो, बताओ मोहल्ला गुनहगार होगा कि नहीं होगा? समाज और माशरा गुनहगार होगा कि नहीं होगा? इसलिए मैं आपसे कहूंगा, कभी आप अपनी बेटियों से गुफ्तगू करें, कभी अपनी पलकों के अंदर खिदमत का जज्बा पैदा करें। मालूम है उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका है, उनकी बारगाह में दो औरतें तशरीफ ले आती है। अल्लाहु अकबर। उनके सरों पे जो दुपट्टा था वो शरीयत के एतबार से महफूज दुपट्टा नहीं था, पतला दुपट्टा था, बाल की सियाही नजर आती थी। सैयदा आयशा सिद्दीका ने उस दुपट्टे को उतारा और मोटी चादर लाकर 2 टुकड़े करके दोनों बेटियों के सर पे दुपट्टा डाल दिया है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, याद रखना, कौम की माँ याद रखना, सैयदा आयशा सिद्दीका ने गरीबों के खाली दामनों को भी भरा है और गरीब बेटियों के सरों पे दुपट्टा भी उठा दिया है, डाल दिया है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप कभी अपनी बेटियों से गुफ्तगू करें। आज बड़ा पुरफितर दौर है, इस दौर में हमारी कौम की बेटियां नारा लगा रही है, माई लाइफ माई चॉइस। मौलाना, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती हूँ। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, किस बात की मर्जी? आप ईमानदारी से बताएं। आज बाज नौजवान भी ये कह रहे हैं, माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। आप ये बताएं, आप जिस मुल्क में जीवित और जिंदा है, क्या इस मुल्क में आप अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकते हैं? नहीं। ये मुल्क आपकी मर्जी से चलेगा, ये संविधान से चलेगा? अरे बोलिए, इस मुल्क में कैसे रहना है? भारत का एक कानून है, उस कानून के मुताबिक, उस कानून के प्रोटोकॉल के मुताबिक आपको जिंदगी गुजारनी है। सुल्तान रज़ा आपसे कहना चाहेगा, जब हिंदुस्तान में बगैर कानून के हम नहीं जी सकते, तो जिस मालिक को मौला ने इस संसार को पैदा किया, तुम्हें पैदा किया, हमें पैदा किया, जरा उस मालिक को मौला से भी पूछो, ऐ मालिक को मौला, ये खूबसूरत आंखें तूने दी है, ये हसीनो जमीन चेहरा तूने दिया है, ये बेहतरीन पर्सनालिटी तूने दी है, ऐ मालिक को मौला बता ये जिंदगी कैसे कटेगी? रब्बे करीम फरमाता है, सुन, मैंने तुझे पैदा किया है, खूबसूरत आंखें दी है, हुस्न और जमाल दिया है, जवानी और जिंदगानी दी है, मगर अपनी मर्जी से न जीना। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिंदगी तुम्हारी हो और सीरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हो, तब जाकर देखना। अगर नबी की सीरत तेरे पास है, नबी का अखलाक तेरे पास है, नबी का किरदार तेरे पास है, तो तेरी दुनिया भी हसीन है और आखिरत भी हसीन है। जिंदगी आपकी हो, सीरत मदीने वाले मुस्तफा की हो। एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी से मुहब्बे गुफ्तगू होता है, कहता है, ए मेरी बेटी, बचपन से लेकर जवानी तक मैंने तेरी खिदमत की। हाँ अब्बा हुजूर खिदमत की है। कहा, बेटी तूने जो कुछ भी मांगा हर जायज ख्वाहिशात की मैंने तकमील की है। हाँ अब्बा हुजूर की है। कहा, तेरा बाप भी तुझसे कुछ मांगना चाहता है, तेरा बाप भी कुछ मांगना चाहता है। आज का नौजवान कहता है,
आज जिस तरीके से मुल्क में आत्महत्या की घटनाएं बन रही है, जिस तरीके से नौजवान लड़के और लड़कियां आत्महत्या कर रहे हैं, मैंने एक नौजवान से पूछा, बता तेरा दोस्त सुसाइड क्यों कर लिया? हजरत नहीं मालूम, उसे एक लड़की का चक्कर लग गया था, उसने दगा दे दिया, उसने सुसाइड कर लिया। मैंने कहा कितना बेवकूफ है आज का नौजवान, क्या तेरी जिंदगी सिर्फ एक लड़की के लिए है? क्या तू सिर्फ एक लड़की के लिए पैदा हुआ? यानी तेरा जमीन इतना गिर गया कि जिस माँ की गोद में तूने जन्म लिया उस माँ को भुला दिया, जिस बाप ने तेरी परवरिश की तूने उस बाप को भुला दिया, जिस खानदान में तूने जन्म लिया तूने उस खानदान को भुला दिया, जिस मुल्क में तूने जन्म लिया तूने उस मुल्क को भुला दिया, और ले देकर ये आवारा लड़की तेरी जिंदगी का मरकज और महवर बन गई। ऐ मेरी कौम का नौजवान, आज तौबा कर और याद रखना, जिंदगी में कोई लड़की सिर्फ तेरी जिंदगी का महवर नहीं हो सकती है। अगर सिर्फ वही हो तो फिर माँ का क्या होगा, बाप का क्या होगा, भाई का क्या होगा, बहन का क्या होगा? ठीक यही हाल लड़कियों का भी है। मैं उन लड़कियों से भी कहना चाहूंगा, बचपन से लेकर 19-20 साल तक जिस जिसने तेरी परवरिश की, जिसने तुझे दूध पिलाया, जिसने हर रोज तेरा लंच बॉक्स तैयार किया, जिस बाप ने कमा कर तेरे लिए महंगे कपड़े खरीदे, तेरी सारी जायज ख्वाहिशात की तकमील की, तू बस एक आवारा कुत्ते के चक्कर में माँ की इज्जत को ठोकर मार देती हो, बाप की इज्जत को रौंद देती हो, की इज्जत को रौंद देती हो, की इज्जत को रौंद देती हो। सुल्तान रज़ा तुझसे कहना चाहेगा, नहीं कभी आत्महत्या के करीब न जाना। मैं बताना चाहूंगा, हम सब इंसान हैं, मालूम है ना, अल्लाह ने सबसे खूबसूरत इंसान को बनाया है। हमने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया है। अब मैं आपको पूछना चाहूंगा, दुनिया के पहले इंसान का नाम क्या है? माशाअल्लाह, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले हजरत आदम। और दुनिया की पहली औरत का नाम हजरत हव्वा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, शायर हो, खतीब हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर, हजरत आदम की बाई बस्ती से हजरत हव्वा पैदा हुई। अल्लाहू अकबर। हजरत हव्वा पे हजरत आदम की नजर पड़ी। हजरत आदम ने सोचा हजरत हव्वा को टच करूं, छूऊं, उनसे गुफ्तगू करूं। हजरत हव्वा ने सोचा मैं भी हजरत आदम के करीब हो जाऊं। रब ने कहा आदम, हव्वा बनी तेरे लिए है, हव्वा तुम बनी आदम के लिए हो, मगर अभी पाबंदी है, अभी रुक जाओ। मालिको मौला बने एक दूसरे के लिए है, तो रुकने का मकसद क्या है? कहा पहले निकाह होगा। क्या कहा? पहले निकाह होगा, फिर मुलाकात बाद में होगी, बात बाद में होगी, गुफ्तगू बाद में होगी, मुलाकात बाद में होगी, तन्हाई बाद में होगी। मालिको मौला मतलब गैर निकाह के अजनबी मर्द और औरत का मिलना दूसरे के लिए जायज नहीं है। इसलिए सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, निकाह खुदा को पसंद है, निकाह आदम को पसंद है, निकाह हव्वा को पसंद है, निकाह सारे अंबिया को पसंद है। और हुजूर फरमाते हैं, निकाहो मिन सुन्नती, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, जो इससे इराज करे वो मुझसे नहीं है। अब सुल्तान रज़ा अपनी कौम के नौजवान लड़के और लड़कियों को कहना चाहेगा, सुनो, इस्लाम में निकाह के अलावा अजनबी मर्द और औरत के मिलने के जितने रास्ते हैं सब हराम है। लिविंग रिलेशनशिप की इस्लाम इजाजत नहीं देता, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की इस्लाम इजाजत नहीं देता, किसी अजनबी औरत और मर्द की तन्हाई की इस्लाम इजाजत नहीं देता। जानते हो क्यों? इसलिए कि उसमें इज्जत का खतरा है, उसमें आबरू का खतरा है, उसमें नफ्स का खतरा है, उसमें याद रखना बेहयाई और बुराई का खतरा है। इसलिए इस्लाम ने सारी बेहयाइयों और बुराइयों पे पाबंदी लगा दिया। मालूम है जो जवान लड़के और लड़कियों ने निकाह के बाद जिंदगी की शुरुआत की, उनका मैका भी खुशहाल रहा, उनका ससुराल भी खुशहाल रहा, उनकी नस्लें भी खुशहाल रही, उनके घर वाले भी खुशहाल रहे। मगर जिन लड़के और लड़कियों ने माँ बाप से छिपकर, खानदान से छिपकर, रिश्तेदारों से छिपकर माँ बाप की इज्जत को तार करके, क्या तुमने पटना में नहीं देखा? नहीं देखा तो अखबार में उठा कर पढ़ो, नरसिंह में पढ़ने वाली छात्रा एक लड़के के इश्क के चक्कर में आ गई।
दोनों ने साथ जिंदगी गुजारने का फैसला ले लिया। न माँ को पता, न बाप को पता, न घर वालों का पता। अपार्टमेंट वाले ने पूछा था, तुम दोनों कौन हो? कहा हम मियां बीवी हैं। पता क्या चला, अपार्टमेंट वालों को भी बगैर निकाह वाले लड़का लड़की पसंद नहीं है। निकाह वाले लड़का लड़की पसंद नहीं है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। अच्छा ठीक है, जब मियां बीवी हो तो रह सकते हो, लेकिन जब 10 दिनों के बाद उस जालिम की उस लड़की से कहते थे, अरे मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों कान खोल कर सुन लो, बेटा हो तो तुम भी सुन लो। आज लाखों लड़कियां ऐसी है जिन्होंने आवारा लड़कों के साथ मिलकर अपने पुराने बॉयफ्रेंड को खत्म कर दिया, और लाखों लड़के ऐसे हैं जिन्होंने लड़कियों की इज्जत और आबरू को लूट कर टुकड़े टुकड़े कर डाला। इसलिए मैं अपनी कौम की शहजादियों से कहूंगा, मेरी कौम की शहजादियों, याद रखना, फेसबुक की बागी में आई लव यू कहने वाला तुझसे मोहब्बत नहीं करता, व्हाट्सएप की बागी में आई लव यू लिखने वाला तुझसे मोहब्बत नहीं करता। हकीकी मोहब्बत तुझसे तुम्हारी माँ करती है, तुम्हारा बाप करता है, तुम्हारे भाई बहन करते हैं, जिसने बचपन से लेकर जवानी तक तेरे बारे में बुरा नहीं सोचा। तूने कैसे फैसला कर लिया? तेरी जिंदगी में जो लड़का तलाश करेंगे वो तेरे लिए बुरा होगा, तेरी जिंदगी में जो दूल्हा तलाश करेंगे वो तेरे लिए बुरा होगा। याद रखना, तुम्हें यकीन नहीं, कभी चाय के होटल पे देख लेना, चाय पीने वाला उस वक्त तक चाय की गर्म प्याली को पकड़े रहता है जब तक कि चाय खत्म न हो जाए। जब चाय खत्म हो जाती है प्याली को फेंक देता है। ठीक यही हाल आज के इन कॉलेज स्कूल के आवारा कुत्तों का है, जो हसीनों जमीन लड़कियों के पीछे उस वक्त पैसा खर्च करते रहते हैं जब तक कि उनकी इज्जत लूट नहीं ले। साहब मोबाइल देंगे, कभी पैसा देंगे, कभी पार्टी देंगे, कभी दिवाली की पार्टी, कभी होली की पार्टी, कभी बर्थडे की पार्टी। इससे क्यों? तेरी सिर्फ इज्जत लूटने के लिए। जब तेरी इज्जत को लूट लेते हैं, दिल्ली मुंबई घुमा देते हैं, फिर तुझे वैसे ही जिंदगी से फेंक देते हैं जैसे चाय पीने वाला पीने के बाद प्याली को फेंक देता है। अब वो लड़की कहती है, नहीं तू तो ऐसा नहीं था, बदल गया है, तूने शादी का वादा किया था। वो कहता है, जा मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। क्या कर लेगी? ज्यादा बोलेगी तो तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, ज्यादा बोलेगी तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसलिए मेरी कौम की शहजादियों, तालीम हासिल करो, इसलिए कि तालीम हासिल करना इस्लाम में फर्ज है। मगर याद रखना, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और इज्जत और आबरू की जिंदगी एक तरफ। तालीम की आड़ में इज्जत का सौदा न करना, कॉलेज की आड़ में जिस्म का सौदा न करना, याद रखना दोस्ती की आड़ में अपनी इज्जत और आबरू का सौदा न करना। बल्कि आज ये फैसला करके जाओ, तेरा कदम घर से निकलेगा तो सैयदा खातून जन्नत की सुन्नत के मुताबिक निकाह के बाद माँ बाप की दुआओं के साथ निकलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, मुसलमाना ने बार की बस्ती, मुसलमाना ने आलम इस्लाम,